This granulation also has to be debrided. This is a unhealthy granulation. Hence, if the granulation is painful, heavy, extra, this granulation has to be removed. So it should be pink, it should be painless, it should be pointed. If you see properly, there will be these spikings on the granulation tissue. I will show you in the next slide what a spiking of the granulation tissue is. This has to be observed properly, and then commencement of the healthy granulation can form and the wound will heal properly. Bleeding on pressure in the wounds is a positive sign. Any wound will require a proper fresh blood flow to the tissues underlying it, or else if there is insufficiency of blood to the tissue at the place of the wound will not heal properly, which is common in venous ulcers, which is common in diabetic ulcers. And hence those wounds don't heal because there is vascular congestion at these points. The fresh blood flow is hampered. The tissue or the blood which flows to the affected part is infected, and hence the wounds don't heal. So if it is bleeding on pressure, it is a very good sign. The granulation is good, and there should be no pus discharge. So basically, pink, painless, pointed pressure, that is bleeds on pressure, and pus, that is no pus discharge, should be the 5 P's that should be followed during the. क्या देखना है हमें व्रण ट्रीट करते टाइम? ट्रीटमेंट मोडालिटीज बहुत यूज करेंगे, जलोकाचरण यूज करेंगे, सीवन विधि यूज करेंगे, षष्ठी उपक्रम में से 60 उपक्रमों का यूज करेंगे, लेकिन व्रणों की अवस्था अगर हमें पता नहीं होती तो व्रण भर रहा है या नहीं भर रहा है यह समझने में दिक्कत आ सकती है. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, और यह 4 अवस्था हमारे शास्त्र में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दी है. जो मैंने ग्रैनुलेशन, हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू के 5 पीस के बारे में बताया, वही सब हमारे संहिताओं में पहले से लिखा हुआ है. The first and foremost stage of the wound is the stage of ulceration. Whenever a dushta vrana comes to you, this is a specific picture which you will see in the first stage of wound. It is an infected wound. If you see properly and read the shlok below it, it is an absolute finely said thing in our Sahitas. Puti puyati dushtasrup. If you see, the granulation tissue is not pink, there are yellow and brown colored layers of dead tissue over the skin. Puti puya. There is purulent discharge from the wound. स्त्राव्युत संगी, स्त्राव आता रहता है, there will be a discharge. उत्संगी, अगर आप इसके एजेस देखोगे, if you see clear the edges clearly, then they are उत्संगी, that is everted, that is raised up edges. If you see, the wound is inside and the edges are swollen, red. दुष्टो व्रणोति गंधादि शुद्ध लिंग विपर्य, ऐसे सभी चीजों से युक्त अवस्था यह दुष्टावस्था या स्टेज ऑफ अल्सरेशन कही जाती है. See, the edges are important to see. The underlying tissue granulation is infected. There is pus discharge. The granulation is not pink. It is not even. It is not pinpoint granulation. The skin outside the edges is also swollen, is also red. So this is a stage of ulceration, that is dushtavastha of the infected wound. Now after treatment, after wound toileting, after taking measures, many treatment modalities can be used, and we have to achieve this avastha, Shuddha avastha. That is, first dushta vran should be converted to a Shuddha vran. If you see Trivaid dosha anakranta,
यानी किसी भी दोषों से आक्रांतित नहीं है, कोई भी दोषों की स्थिति इसमें हमें नहीं दिखाई देती है। शावोष्ट पिटिका समूह, जो एजेस है वो अभी सम हो गए हैं, प्लेन हो गए हैं, उभार नहीं है, उत्संगी नहीं है। इसका जो कलर है वह थोड़ा सा डार्क हो गया है पहले से। शावोष्ट, ओष्ट यानी उसके जो एजेस है, उसके जो लिप्स है, these have turned a bit dark। पिटिका सम अवेदनो निरास्त्रावो, इसमें पेन नहीं होता है। निरस्त्राव यानी कोई भी टाइप का डिस्चार्ज, ओनली सैंगुइनस डिस्चार्ज इज देयर। और ये सभी चीजें शुद्ध व्रण या स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन दिखाती है। So this is a शुद्ध अवस्था which is a second stage। रूयमान अवस्था, स्टेज ऑफ रिपेयर। कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांता क्लेद वर्जिता, अभी इसके ऊपर स्किन टिश्यू आना चालू हो चुका है, स्कैब फॉर्मेशन चालू हो चुका है। और ऐसे केसेस में कपोत वर्ण प्रतिमा यानी a slight more darkish color of the skin tissue has started to develop। इसमें क्लेद will cleaned, have approximated well, the circumference or diameter of the wound has gone down as well, and there is no clade, there is no discharge from the wound, the wound is perfectly dry। सिराश्च पिटिका बनतो रोहती तमादिशेत। और इसी तरीके से यह व्रण धीरे धीरे अपनी भरनी की स्थिति में आ जाता है, विच इज नथिंग बट अ रूयमान अवस्था। तो पहले दुष्टावस्था, फिर शुद्धावस्था, फिर रूयमान अवस्था, एंड द फोर्थ स्टेज इज द हील्ड वुंड या रूढ़ अवस्था। जैसे मैंने कहा कि व्रण हमेशा उसका स्कार शरीर पर छोड़ता है। रूढ़ वर्तमानम अग्रंथिम अशूनम अरुजम व्रणम, यानी कोई भी टाइप की ग्रंथि या कोई भी टाइप की पिटिका उस व्रण के ऊपर नहीं है। स्किन हैज कम, अशूनम मतलब कोई भी प्रकार का शोथ या पेन वहां पे नहीं है। अरुजम त्वक सवर्णम, त्वचा के सदृश कलर वाली स्किन उसके ऊपर आ चुकी है। समतलम सम्यक रूढ़म विनिर्दिशेत। ऐसे 4 स्टेजेस में वुंड हीलिंग होता है। What happens in a case of wound is, first the bleeding starts, and inflammatory reaction from the body starts, the defense mechanism tries to plug the wound from outside। So in the stages of wound healing, first the bleeding stage, hello, I think there is some disturbance, we'll continue। The first is the bleeding stage, then it is an inflammatory stage where the fibroblast and microphage cap forms on the layer of the skin. Then it is a proliferative stage, which is a Ruyaman avastha, where fibroblast and subcutaneous fat merge with each other, and then a remodeling phase, which is generally achieved on the day 12 or 14, depending on the type and extent of the wound present on the patient। So freshly healed epidermis, freshly healed dermal layer, and the subcutaneous layer is formed with a scab with a proper skin over the wound, and remodeling of the wound is done। So these 4 stages we have to understand and look after while treating every and each wound which we have seen। षष्ठी उपक्रम के बारे में लेक्चर आगे भी आएगा, लेकिन अगर आपको किसी भी व्रण की ट्रीटमेंट करनी है तो सुश्रुत का यह चैप्टर पढ़िए। इसमें से जो जो कर्म बताए गए हैं वह कुछ विशिष्ट कार्य के रूप में हमें यूज करने हैं व्रण के ऊपर। Please request the mic off, someone's mic is on।
यस। सो इसमें अगर आप क्लासिफाई करोगे तो षष्ठी उपक्रम को इस टेबल के हिसाब से आप इस स्पेसिफिक चीज के लिए यह स्पेसिफिक कर्म यूज करना चाहिए। दोष दुष्टिहर, शोतहर, शस्त्र कर्म, दुष्ट व्रणहर, शुद्ध व्रण में यूज करने वाले टेक्निक्स, वेदनाहर, रूढ़ व्रण कर्म, आहार, रक्षोघ्न कर्म और इतर कर्म। कितनी अच्छी तरीके से सुश्रुत में यह वर्णन किया गया है। और आप एक एक वुंड को, अगर इसमें से आपको अगर शोथ उस व्रण का कम करना है तो अपतर्पण, आलेप, परिषेक, अभ्यंग, स्वेद, विमलापन, उपनाह, पाचन, इस कर्म में से कोई भी एक कर्म करना है तो उस व्रण का शोध कम होगा। ऐसे अगर आप डिफरेंशिएट करके इन षष्ठी उपक्रमों में से if you choose specific karmas, then they will be very beneficial for the patient. If there is dosha dushti, if the vran is ashuddha, if the wound is infected, if there is samata around the wound, if the wound is not healing properly even after treatment, then nasya, marsha, kavala, धूमपान, बस्ती, उत्तर बस्ती, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण एंड स्नेहन, इन कर्मों का इस्तेमाल दोष दृष्टि को कम करने के लिए करना चाहिए। यानी शोधन क्रियाओं से पहले दोषों को उनके स्वाभाविक दृष्टि से बाहर निकालकर जब सार्वदेहिक दोष दृष्टि कम हो जाएगी तो अपने आप व्रण बाद में भरने लगेगा। ऐसे ही अगर शोथ को कम करना है तो अपतर्पण यानी उपवास, आलेप, अलग अलग टाइप के लेप जो बताए गए हैं, परिषेक, ये एक बहुत अच्छा कर्म है जो हम व्रण के ऊपर करते हैं। आई थिंक कल मैडम ने भी हमको इसके बारे में बताया था। अलग अलग तेलों से अगर हम परिषेक गुण के ऊपर करेंगे तो यह शोतहर भी होता है और वेदनाहर भी होता है। अभ्यंग, स्वेद, अलग अलग टाइप के नाड़ी स्वेद हम इसमें दे सकते हैं। अलग अलग द्रव्यों के इस्तेमाल से किया गया यह स्वेद या धूपन विधि से भी शोथ कम होने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। विमलापन, उपना, विमलापन यानी फर्स्ट व्रणशोथ की पहली अवस्था में जो पहला कर्म करते हैं, आदव विमलापन कुर्यात्, यह विमलापन से भी दोषों को बाहर निकालने में, स्थानिक दोषों को बाहर निकालने में मदद अच्छी तरीके से मिल सकती है। उपनाह है, पाचन क्रिया है, यह शोथ को कम करने वाली प्रक्रियाएं दी गई है। शस्त्र कर्मों में छेदन, भेदन, धारण, लेखन, scrapping of the wound is also very important treatment protocol. If the wound is not healing, if the edges are not proper, if the edges are infected, a secondary debridement या लेखन करना पड़ता है। कभी कभी ग्रैनुलेशन टिश्यू का भी लेखन करना पड़ता है, जिसके बाद हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू आता है which will contribute to the proper healing of the wound. एशन, आहरण, व्यदन, जहां जहां व्रण है, अभ्यंतर है, बाह्य है, उस प्रकार से शस्त्र कर्मों को हमें चूज करना है। छेदन, भेदन, धारण, लेखन, एशन, आहरण, व्यदन, विस्त्रावण, सीवन, संधान, पीड़न, शोणित स्थापन और निर्वापन, यह सभी क्रियाएं षष्ठी उपक्रम में आगे के लेक्चर्स में भी आप सुनेंगे इनके एलैबोरेटिव वर्क के बारे में। ऐसे ही दुष्ट व्रणहर, जैसे दोष दुष्टि को कम करने वाले कर्म बताए गए, वैसे ही व्रण की दृष्टि को कम करने के लिए पत्रादान, रोमशातन, अग्निकर्म, शार कर्म, धारण कर्म, मृदु कर्म, उत्सादन, अवसादन, व्रण धूपन, इन सभी टेक्निक्स में यूज की गई हुई प्रक्रियाएं, शार कर्म में यूज करने वाले अलग अलग शार, अग्निकर्म में यूज करने वाले अलग अलग मोडेलिटीज, यह सभी चीजों से व्रण की दृष्टि कम होती है। शुद्ध व्रण एक बार तैयार होने के बाद, इन सभी प्रक्रियाओं से दोष दृष्टि कम होने के बाद, दुष्ट व्रण जब शुद्ध व्रण में परिवर्तित हो जाता है, फिर उसमें बंध, मधुसर्पी का प्रयोग, कषायपान, वर्ती, कल्क, तैलधारा, रसक्रिया, अवचूर्णन कर्म और उत्कारिका यानी भाकरी जो बना के, दवाई वाली भाकरी बना के व्रण के ऊपर रखने का भी जो इस्तेमाल
सुश्रुत में बताया गया है। यह व्रण शुद्ध होने के बाद शुद्ध व्रण को स्व स्थिति में रखकर उसका अच्छा हीलिंग होने के लिए यह सभी चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। बंध का प्रयोग तो हम सभी करते हैं, अलग अलग टाइप के बंध बांधने से, इमोबिलाइज करने से बहुत से व्रण अच्छी तरीके से ठीक होते हैं। सो दोष दुष्टिहर, शोतहर, शस्त्रकर्म, दुष्ट व्रणहर, शुद्ध व्रण की चिकित्सा। ऐसे ही धूम और प्रतिसारण से वेदना कम होती है। रूढ़ व्रण यानी स्कार टिश्यू के लिए भी सुश्रुत में कृष्ण कर्म, मतलब जो व्रण के स्कार सफेद है, लाइट है, उनको डार्क करने के लिए पांडु कर्म, रोम संचलन, सवर्णीकरण, यह सभी प्रक्रियाएं आप संहिताओं में पढ़ सकते हैं। उनके अलग अलग द्रव्य दिए गए हैं, ये आप जरूर पढ़िए, उसका अच्छा फायदा होते हुए दिखता है। आहार में भी खट्टा, ठंडा, बासी, दही, बेकरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी सब्जियां जैसे आलू है, बैंगन है, गवार की सब्जी है, नया दधी है, तक्रांतो नवधान्यादि यो अयम वर्ग उदाहरत, ऐसे कहा गया है। यानी तक्र और तक्र से बनने वाली चीजें नए वुंड में कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वुंड चिघल जाता है और इन्फेक्ट होता है और भरने में भी दिक्कत आती है। यह सभी चीजें बंद करनी चाहिए। रोहन कर्म पेशेंट को करना चाहिए, जिससे अच्छा फायदा होते हुए दिखता है। रक्षा विधान में रक्षोघ्न गण में दी हुई औषधियों से धूपन, दी गई औषधियों के कषाय पान, व्रणितागार में मतलब जहाँ वो वुंड वाला व्यक्ति ठहरने वाला है उसका भी स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन, यह सभी विधियां रक्षोघ्न विधि में आती है। और इतर में कृमिघ्न और विषघ्न, ऐसे 60 जो उपक्रम कहे गए हैं, उनके अलग अलग कार्य है। कभी भी एक ही व्रण में सभी कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इच्छित है, आपको शोथ कम करना है तो शोथहर कर्म, वेदना कम करनी है तो वेदनाहर कर्म, ऐसे कर्म सिलेक्ट करके अगर हम उसका अच्छा प्रोटोकॉल बनाएंगे तो फायदा होते हुए दिखता है। यह 60 उपक्रम के बाहर कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटी नहीं है, सभी इनके अंतर्गत ही आती है। yes, there are recent advances which will come up in the series as well, but these advances are nothing but byproducts or experimentation of these Shashti Upakrams only, and standardization of these Shashti Upakrams may lead to a very good and insightful data on the management of wound. Just a second. So the proper protocols of Shashti Upakram should be followed so as to do a proper treatment. अभ्यंतर औषधियों में रस सिंदूर, सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर गुगुल, बहुत सारे केसेस में त्रिफला गुगुल इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से मैं करता हूँ। अलग अलग टाइप के धावन टेक्निक्स है जिसमें चवलकल क्वाथ, त्रिफला क्वाथ लेकर व्रणों को उसमें डुबो कर, या हम हमारे हॉस्पिटल में मेरे पास बहुत पेशेंट आते थे जिनके पोस्ट ऑपरेटिव, और ऐसे केसेस में हमने गैमजी में भिगोया, पंचवलकल क्वाथ में भिगोया हुआ गैमजी हम उस व्रण के ऊपर दिन में 1 बार 2 बार रखते थे, रक्षोघ्न द्रव्यों से धूपन करते थे, जिससे भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। लोअर लिम्स के जो व्रण है, जैसे डायबिटिक वुंड्स है, वेरिकोज अल्सर्स है, अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शंस है जो वेबिंग्स में होते हैं, ऐसे सभी व्रणों में व्रण धावन का अच्छा रिजल्ट हमें देते हुए मिलता है। ऑल्सो इन मेनी एनोरेक्टल केसेस हम कदिरादि क्वाथ है, त्रिफला क्वाथ है, पंचवलकल क्वाथ है, अलग अलग टाइप के कषाय है जिसमें पेशेंट को हम बिठाते हैं और उस व्रण धावन से भी अच्छा रिजल्ट मिलते हुए हमें दिखा है। तैलादि पिच्चू प्रयोग, जात्यादि तेल, व्रणरोपक तेल, यष्टिमरु तेल, पंचतिक्त घृत, ऐसे बहुत सारे अलग अलग घृत और तेल है जिसका भी इस्तेमाल हम पिच्चू के रूप में वेदना शमन, शोतहर कर्म और हेल्दी ग्रेनुलेशन फॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरतम भाव से आप अपने विवेक बुद्धि से अलग अलग चीजों को
इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब स्पेसिफिक सिर्फ कर्म है जो आप अपने ओपीडी लेवल में भी अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो बहुत बार एंटीबायोटिक देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत बार हमें ऑइंटमेंट्स एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। व्रण अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं। व्रणधूपन अवगाह विविध काळांमध्ये व्रणाचा भाग यानी बहुत, जैसे मैंने कहा ब्रेड लोफ का ये बना के उसमें ब्रेड लोफ का जो बॉक्स मिलता है उसमें अलग अलग काढ़ों को डालकर उसमें व्रणों को अगर डुबाया जाए तो अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। मलहर प्रयोग, प्रसाद मलहर है, मधुचिष्टारी ग्रुप है, शतदौता है, जात्यादी ग्रुप, ऐसे बहुत सारे मलहर जो मेंशन्ड है संहिता में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डिटेल्स आपको अलग लेक्चर्स में अभी मिलेंगे। एक एक स्पीकर उसके ऊपर उनका विवेचन करेंगे जब वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज लेंगे। चलौकावचरण, रक्तमोक्षण, व्रणबंधन, सूची सीवन प्रयोग, ऐसे सभी ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। रिसेंट एडवांसेस, yes there is a definitive role of antibiotics in the initial stages of many wounds which should not be ignored and which should not be tolerated। जहाँ पे जरूरत वहाँ पे उस पैथी का इस्तेमाल करना ही चाहिए उस पेशेंट की भलाई के लिए। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहता कि वो ये ट्रीटमेंट सिर्फ इसी पद्धति से करनी चाहिए। जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो ट्रीटमेंट देनी ही चाहिए। कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट आपको पेशेंट की करने जरूरी है। कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री आपको पेशेंट की लेनी जरूरी है। जो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होंगी मिस हीलिंग ऑफ द वुंड्स में, वुंड डिब्राइडमेंट में इरिगेशन ऑफ द वुंड, सर्जिकल, एंजाइमेटिक एंड बायोलॉजिक, ऐसे अलग अलग अभी एडवांसेस आए हैं। इसके बारे में भी स्पीकर आपसे बात जरूर करेंगे। टॉपिकल थेरेपी इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट, अभी तो कोलॉइड्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स आए हैं अलग अलग जो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इसमें रहते हैं। अभी कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स का जो जो अभी थियरी आई है नई, जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में बेड सोर के डिफिकल्ट केसेस में हम करते हैं। ऐसे टॉपिकल एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हमको मिलेंगे। ग्रोथ फैक्टर्स, एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, सिल्वर बेस्ड, आयोडीन बेस्ड, हनी बेस्ड, ऐसे अलग अलग डिसइंफेक्टेंट्स का लेक्चर डॉक्टर धरने भी लेंगे जिसमें स्पेसिफिक यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में वो बताएं। कौन सा डिसइंफेक्टेंट कहाँ यूज नहीं करना है। हमको आदत होती है जो भी ट्रॉली पे मिलता है वो सभी डिसइंफेक्टेंट्स हम वुंड में डाल देते हैं, बस वुंड क्लीन करते हैं, लेकिन वुंड हील नहीं होता क्योंकि हर एक डिसइंफेक्टेंट का एक स्पेसिफिक रोल है। वो अच्छी तरीके से समझ के अगर हम करेंगे तो फायदा जरूर होता है। वुंड ड्रेसिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे गाइड और जो मेरे एचओ जो कि एक ऑनरेबल स्पीकर भी है इस सीरीज में, डॉक्टर काशीकर सर, वो हमेशा कहते थे कि बेटा वुंड ठीक करना प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेट करना इज नॉट अ मेजर इशू। उसका ड्रेसिंग अगर प्रॉपर से नहीं करते तो ही बहुत सारे केसेस में वुंड एडिशन ओनली ड्यू टू इम्प्रॉपर वुंड ड्रेसिंग के कारण होता है। इसलिए ड्रेसिंग की टेक्निक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। फॉलो द 5 P's फॉर्मूला, जैसे पेन, नो पल्स, जो मैंने कहा 5 हेल्दी ग्रैनुलेशन के 5 P's है, उनको देखिए, प्रॉपर ड्रेसिंग कीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉइस्चर, फिल्म्स, फोन्स, एल्किनेट्स, हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोएक्टिव, ये अलग अलग अभी कॉम्बिनेशंस मिलते हैं मार्केट में जो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अलोंग विथ ऑल द आयुर्वेदिक drugs and decoctions that are mentioned in Shashti Upakram can be used in wound dressings. Wound packing, wound closure, negative pressure wound therapy, full thickness skin grafts, split thickness skin grafts, ये सर आपको काशीकर सर आपको ग्राफ्टिंग के बारे में जब उनका लेक्चर होगा तो उसमें वो बताएंगे। एंड एडजुवेंट थेरेपीज और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इसके बारे में भी एक लेक्चर है। और आजकल तो वैक्यूम का ये है रोल है जिसमें बहुत सारे वुंड्स, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड जो भरते नहीं है, जिसमें आजकल वैक्यूम पंप लगाने की जो टेक्निक है जिससे ग्रेनुलेशन टिश्यू उभर के ऊपर तक आता है और बड़े बड़े वुंड्स आजकल भरते हैं। तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी also contribute to recent advances of wound management. These are some difficult wounds to treat, that is the diabetic wound and the varicose wound. I will go fast. I have one case to show which I will show and then I'll stop. Impaired function of the WBCs because there is inability to fight bacteria. Every diabetic wound will be a sugar laden tissue
which is prone to infections, and hence there is poor circulation around the wound. There is lack of nutrition. There is nerve damage, neuropathy, जिसके वजह से भी पेन और इसके सेंसेशंस नहीं होने के कारण व्रण बढ़ता जाता है. नर्व डैमेज होने के कारण टिश्यू सप्लाई अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण भी व्रण नहीं बढ़ता है. weakened production of hormones associated with growth and healing, weakened skin barrier यहाँ पे रहता है, and decreased collagen production contribute to non-healing of a diabetic wound. ऐसे ही venous ulcers में भी high pressure in the veins of the lower legs, valve malfunction, blockage of the veins, जहाँ पे perforators होते हैं, perforators break होने के कारण वहाँ पे ब्लड कंजेशन होना, वीनस कंजेशन स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पे भी ब्लड रुकने की प्रक्रिया होती है उस ब्लड में पुष्टि होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, जिसका रूपांतर बाद में वुंड्स में और बाद में वीनस अल्सर्स में होता है. देयर इज वीनस इनसफिशिएंसी, cooling of the fluid, as I said about the venous congestion, and less nutrition, which causes the non-healing of the venous ulcer wounds. I just share one case because this was just a protocol lecture जिसमें व्रण की टाइप्स, व्रण के अवस्था को जानना है, कौन सी अवस्था में किसको कहाँ पे कन्वर्ट करना है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या है, षष्ठी उपक्रम का स्पेसिफिक रोल क्या है, हर कर्म का उसका एक्शन स्पेसिफिक क्या है, ये अगर जानना है तो ये जो प्रोटोकॉल है ये हमको फॉलो करना पड़ेगा. Female aged 54 years. This was a patient, a lady with a big wound on her foot, on the lateral aspect of the foot, came to me suffering from 2 years. She had reached many doctors, many treatments were given to her. Wound used to heal in some part and again used to dry out, and again the extent of the wound used to increase. There was no history of diabetes or any other disorders. Peripheral pain was there around the wound. There was skin discoloration and failed treatment procedures. Many treatment procedures were failed when she came to me. This was the picture when she came to me. Now remember the stages of the wound which we discussed. This is perfectly a stage of ulceration. See, the edges are not clean. Yellow discoloration is there. There is no pink granulation. There was first discharge. See the color around the wound. It is almost black, suggesting less nutrition or blood flow to that part of the wound, and hence this wound was not healed. See the extent of the wound. It is almost a 8 to 9 centimeter wound with irregular edges. I have treated many cases of these. I'll just share one with you. This is the case where Jaloka Charan plays an excellent role. We applied Jaloka to the wounds. This is the second sitting of the Jaloka, and we have I have never applied Jaloka inside the granulation tissue. I have no experience of using it. We apply it on the borders of the tissue, wherein the debris from the borders is sucked in, where proper negative pressure is created and the fresh blood flow is increased to the site of the wound. If you see from the previous picture, this picture looks better. The edges are now uniform. The granulation is starting to improve. If you see deeply the red tissue, the pinpoint granulation, the pinheads which have come up on the granulation, and the amount of debris or yellow tissue is also decreased very much. So this is a stage of healing या रुह्यमान व्रण की अवस्था जो रहती है. See, this is a stage of repair. The edges have now closed so much. We did 3 sittings of Jaloka in this patient along with Vranadhavan 2 times in a day, and Abhyantar Aushadhi were given. No other treatment modality was used. See, the color around the wound is also changing. See, these are the stages of repair. From a Dushta Vran, we converted into a Shuddha Vran, and then from a Ruhyavan Vran. Now, the patient is there after 1.5 years of treatment. Still, she is under my follow-up, and this is the stage. This is actually a previous picture. Now, if you see the wound, it is a plain, clear skin on the wound. The patient has no pain.
there is no swelling. The color of the outside skin has also improved abundantly. You would not make up whether the patient had a wound or not. इतना clear skin उसके ऊपर आया है. Very less scar tissue. There is absolutely no scar tissue left on the wound. And Jalokao Charan with Dhawan, Dhupan, and the necessary ingestible medicines cure this patient wound. ऐसे बहुत सारे wound हमने किए हुए हैं. This was just an example to show you that if you choose a proper protocol and if you choose a proper modality to the definitive wound, there will be a definitive increased chances of wound healing and betterment of the patient as well. So thank you very much. Thank you, Shreyas e-learning team, for this opportunity. I hope this was a protocol lecture. This was not a modality lecture. I hope the avasthas are very clear with all the technicians or all the physicians who are treating the wound. And if you see the proper stages of wound healing and choose the proper treatment protocol from Sashti Gautam, definitely there will be a benefit to the patient. Thank you very much, Shreyas e-learning team.